Good evening to all esteemed guests, faculty member, students, and all participants. It gives me immense pleasure to introduce today's distinguished speaker for today's inaugural session as we started our monthly lecture series organized under aegis of Gyan Kumbh by the Department of Linguistics, KMI Institute of Hindi and Linguistics, Dr. B.R. Ambedkar University, Agra. I truly feel honored to welcome Professor Beena Sengar, ma'am, an eminent scholar and associate professor, not associate professor, professor at the Department of History and Ancient Indian Culture, School of Social Science, Dr. Baba Sahab Ambedkar, Marathwada University, Aurangabad, Maharashtra. Dr. Professor Sengar brings with her a remarkable body of academic work and field-based research that spans across rural and tribal communities, not only within the Maharashtra, but also beyond its geographical boundaries. Her lecture today is entitled Ecological Cultural Diversity, Healing and Indian Knowledge System, a theme that resonates deeply with the interdisciplinary spirit of our lecture series, especially in the intersection of language, cultural, ecology, and indigenous wisdom. Professor Sengar is widely respected for her insightful study on traditional knowledge system, indigenous healing practices, and the lived realities of marginalized communities belonging to tribal areas and rural areas. She is not only a prolific academic, but also a dynamic leader with a deep commitment to socially engaged scholarship. Many who have worked with her believe she is a born academic driven by an unyielding work ethic and a natural flair of leadership. We truly privileged to have her as the first speaker of the lecture series, setting the tone for a vibrant intellectual journey ahead. Kindly please help me in extending a warm welcome to Professor Beena Sengar. Ma'am, now it's... So thank you, Ravindra, for giving such an elaborate, it was not needed, of course, my introduction. First of all, I would thank Professor Neelam Yadav, Professor Ravindra Goswami sir, and all his team and the distinguished scholars of Agra, Dr. Bhimrao Ambedkar Agra University. It's truly an honor to be part of this lecture series, and I feel privileged that I have been given the first lecture of Gyan Kumbh online lecture series. So as the thematic area of Gyan Kumbh remain to be interdisciplinary in their approach, and the area or the thought process which is involved in this whole lecture series is that how we can integrate different disciplinary expertise to bring into focus one uniform knowledge system, that is Indian knowledge systems. So keeping the pace of the thought and the philosophy of Gyan Kumbh, I'm giving a lecture. I'm sharing. I won't call it a lecture. It is more about sharing my understanding and whatever I had been doing for last 25 years in the field of knowledge, historical knowledge, contemporary knowledge, and natural knowledge which we have around. Uh, and I have tried to summarize those few of my understandings in the lecture, which is entitled Ecological Cultural Diversity, Healing and Indian Knowledge Systems. So I would just play my slides accordingly. So as the thematic area says, ecological cultural diversity, healing and knowledge systems, I would share one very important dynamic that whatever we know today, whatever knowledge we have today is nothing but the knowledge of human understanding of the nature which is around them. We may call it physics, we may call it ecology, we may call it biology, zoology, whatever. But whatever knowledge we have has not come from vacuum. Every knowledge has come from the
natural representation of the divine expert. Whatever divine is there, it is representing itself in the form of ecology or nature. And whatever knowledge we have today in all realm of the human society, they come in form of natural understanding of human societies. So this is how we understand the concept of knowledge and natural human endeavors. I'll just take a little bit. A small cat, which is, if I'm not wrong, I'll just, okay. So, am I audible to everybody? Yes, ma'am. Okay. So when we try to understand what is called as knowledge, it is nothing but what we understand nature in what particular form. So if somebody is trying to understand what is not visible to human eyes, but even that if exists in nature, that is physics. And whatever is visible to us in different forms of knowledge can be quantified or can be understood as the knowledge systems of physical sciences or physical social sciences, or what we could say even and whatever is human representation. Beena ma'am, sorry I'm interrupting. Yeah. If you would be bilingual, that will be more beneficial to the जरूर जरूर ऐसा है। तो listeners. मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जब, मेरे ख्याल से तो मैं बहुत खुश होंगी क्योंकि आगरा की ऑडियंस है और मैं खुद यूपी से हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी. So I would definitely speak only. Most of the participants actually belongs to, I think, Hindi department too. Hindi. So they have language problems. No, it's not a language problem. It is actually language privilege. That आप सब लोग we can say that is our outlook. Okay, ma'am, please. हैं और आप हिंदी में, मुझे तो बहुत खुशी होगी क्योंकि जो कुछ भी मैं आज चर्चा करने वाली हूँ उसका मूल आधार ही हिंदी और देवनागरी का जो ज्ञान है, हिंदी और देवनागरी का जो आध्यात्मिक और प्राकृतिक ज्ञान की परंपराएं हैं उससे आधारित है. अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने अपने पहले स्लाइड के आधार पर जो बात कहनी चाहिए वो ये है कि जो हमारे देश में या हमारी परंपराओं में पुरुष और प्रकृति की संकल्पना है, तो पुरुष सिर्फ पुरुष को ही निहित नहीं है. पुरुष को अगर हम मानव से जोड़े, परेशानी है कि मानव और मानवी को हम फिर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कर देते हैं, पर पुरुष और प्रकृति अपने आप में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की भाषा है. प्रकृति ज्ञान है, जो संपूर्ण ज्ञान हमें ब्रह्मांड में दिखता है वो प्रकृति है, और पुरुष क्या है, वो जो उस ज्ञान को समझने की कोशिश करता है. तो स्त्री, अगर हम प्रकृति को बोलें तो प्रकृति स्वयं में ही ज्ञान का आधार है. ओके जस्ट अ सेकंड, आप एक प्रकृति को खुद देख सकते हैं. तो मूल आधार क्या है कि किस तरह से हम प्रकृति को समझते हैं. तो प्रकृति ही ज्ञान है और ज्ञान ही प्रकृति है. अगर हम इस चीज को समझते, अगर इस चीज को आधार दे तो ये अपने आप में बहुत ये हमारी बहुत सी जो विषमताएं हैं, जो हमारे अंदर ज्ञान को लेकर जो भिन्न भिन्न धारणाएं हैं और ज्ञान को लेकर जो हम कंपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं कि ये ज्ञान बड़ा है, ये ज्ञान छोटा है, या फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले ज्यादा ज्ञानी होते हैं और भाषा को समझने वाले नहीं. लेकिन अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा को देखें तो उसने सभी ज्ञान परंपराओं को प्रकृति से जोड़ा है, और उस प्रकृति के ज्ञान को समझने की जो संकल्पना है, जो परिकल्पना है, वो किसके पास है? वो पुरुष है. यानी कि जो ज्ञान को समझने की कोशिश करता है वो खुद को प्रकृति से जोड़कर भी खुद को हम्बल रखता है, यानी कि खुद को समर्पण के साथ या उसके सामने सरेंडर करना, यानी उसके सामने खुद को प्रकृति को ऊपर रखते हुए खुद को हम संयम रूप से, जिसे हम निषद की बात कहते हैं, यानी कि हम प्रकृति को ऊपर रखते हुए खुद एक धरातल पर बैठकर उसको समझने की कोशिश करते हैं. वो पुरुष का माध्यम है. तो वो जो माध्यम है वो पुरुष है. उसे हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग करते हुए हम उस चीज को समझे कि किस तरह से ज्ञान की परंपराओं को हमारे आध्यात्म या हमारे संपूर्ण जो ज्ञान परंपराएं हैं उसे किस तरह से ज्ञान को रखा गया है. अब इसी चीज को आगे बढ़ते हुए हम दूसरी चीज लेते हैं. तो इस चीज को क्योंकि मैं जो बात कर रही हूँ वो है हीलिंग एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, तो इसलिए
ज्ञान की सभी परंपराओं में जो सबसे महत्व है वो है प्रकृति और पुरुष, यानी कि प्रकृति यानी कि इकोलॉजी या प्रकृति, और प्रकृति से निर्मित जो संस्कृति है उसमें वैविध्यता के आधार पर जब हम ज्ञान की परंपराओं से स्वयं की शुद्धिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं, वो क्या है? इकोलॉजिकल कल्चरल डाइवर्सिटी, हीलिंग एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो इस तरह से हम ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे इस पूरी परंपरा में, या इस पूरी इस पूरा जो फिलॉसफी है, इस पूरी फिलॉसफी में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो ये टॉपिक है इसको हम देखेंगे कि इकोलॉजिकल कल्चर, जो पुरुष और प्रकृति के सामंजस्य से जिस वैविध्यता का निर्माण होता है, उसी वैविध्यता का एक स्वरूप है भारतीय ज्ञान परंपरा। और उस ज्ञान परंपरा से जिस शुद्धिकरण या जिस हीलिंग को हम कहेंगे, मैं इसे शुद्धिकरण ही कहूंगी, जब हम खुद को हील करते हैं या जब हम खुद को उपचार करते हैं, हम खुद का उपचार करते हैं, तो हम ज्ञान की, प्रकृति और संस्कृति की इस वैविध्यता को स्वीकार करते हुए खुद को शुद्ध करते हैं। ये इस उदाहरण का या ये इस शीर्षक का एक छोटा या एक सरल भाषांतर हुआ या भाष्य हुआ। इसी को आगे रखते हुए हम देखेंगे कि अब इस पूरी ज्ञान परंपरा, इस पूरी प्रकृति और संस्कृति की भारतीय ज्ञान परंपरा की आयुर्वेदिक या शुद्धिकरण की इस विधा को हम आयुर्वेद कहते हैं। क्या मैं फिर से बोलूं ये बात? आप में से कितने लोगों को ये इतना अभी तक जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ वो समझ में आया? तो भारतीय ज्ञान परंपरा में पुरुष और प्रकृति से बनी हुई सांस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक सांस्कृतिक विधा में स्वयं की उपचारिकता और उपचार और स्वयं के शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया को भारतीय ज्ञान परंपरा में आयुर्वेद का नाम दिया जाता है। और आयुर्वेद को हम सिर्फ, जैसे हम एलोपैथी को क्या बोलते हैं, एलोपैथी इज अ सिस्टम ऑफ क्योर, लेकिन आयुर्वेद का अर्थ है फिलॉसफी ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। वो विधा जिसमें हम स्वयं के सेहत, स्वयं की आयुर यानी सेहत और उसकी शुद्धता या उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि के बारे में जब हम चर्चा करते हैं या अध्ययन करते हैं, उसे हम आयुर्वेद कहेंगे। इसीलिए आयुर्वेद के एक श्लोक में कहा जाता है, आयुर्वेदयति बोधयति इति आयुर्वेदः, अर्थात जो शास्त्र यानी विज्ञान आयु अर्थात जीवन का ज्ञान कराता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। इंग्लिश में उसका सरल उदाहरण है, इट फर्दर एक्सप्लेन्स दैट द साइंस व्हिच एजुकेट्स अस and gives us knowledge about life, age in life has complementary meaning in Sanskrit as in Ayurveda. अब सबसे उत्तम बात क्या है कि हमारे आयुर्वेद में आयु का अर्थ जीवन से है। जीवन और आयु को हम अलग नहीं देखते, यानी कि आयु का जीवन से व्यतिरिक्त नहीं है, वैयक्तिक नहीं है। जो आयु और जीवन में आयु का वही स्थान है जो एक शुद्धता और सेहतमंद से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपकी आयु ये सिद्ध नहीं करती कि आपका जीवन कम है या ज्यादा, आपका जीवन स्वयं में ही परिपूर्ण है। वहीं हम जब वेस्टर्न मेडिसिन या पाश्चात्य ज्ञान परंपरा को देखते हैं तो वो हर चीज किससे जोड़ता है? आयु से। उसमें पूरी वो पाश्चात्य सेहत की परंपरा पूरी तरह से आयु से जुड़ी हुई है। आयु नहीं, वय यानी आपकी उम्र कितनी है, उनका ये आधार नहीं है कि आपका जीवन कितना है, उनका ये मूल अर्थ है, वो मूलक इस आधार पर निर्णय कर लेते हैं कि आप कितना जीवन जी चुके हैं। जबकि हमारे आयुर्वेद में जीवन और आयु अलग नहीं है, जीवन और आयु एकात्मक है और आयु उससे
अलग नहीं आती। आयु यानी आप कितनी उम्र के हो गए, ये कोई ये सिद्ध नहीं करता कि आप वयोवृद्ध हैं या आयु में छोटे हैं। आयु सिर्फ जीवन से जुड़ा हुआ है। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये बहुत महत्व की बात है कि आयुर्वेद में हमें वय यानी मराठी में उसे वय कहते हैं, इसलिए मेरे मुंह में वय आ रहा है। आयु यानी कि उम्र का हमारे जीवन में उतना ही कम महत्व है जितना हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है। तो सेहत और जीवन के अग्रसर होने की जो प्रक्रिया है वो आयुर्वेद में उसे ज्यादा मूल्यांक नहीं दिए गए। तो ये एक आधार हमें समझना होगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रकृति, आयु और वैविध्यपूर्ण व्यवस्था को हम किस तरह से समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आती है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है जिसे चरक संहिता में चरक संहिता के पहले चौथे अध्याय के 40वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा गया है, और वशिष्ठ की पुस्तक में इसे 2021 में पुनः मैंने उससे उद्धरण लिया है कि हिता हितम सुखम दुख मायुस्य तस्य हिताम हितम मानः च तच्च यत्रोक्त मायुर्विद्या स उच्येत। जिस शास्त्र में हित, अहित, सुख और दुख इन चारों प्रकार की आयु का वर्णन किया गया हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में आयुर्वेद का अर्थ आपकी उम्र से नहीं है कि आपने जीवन के कितने वर्ष इस धरती या प्रकृति में व्यतीत किए। उनका मूल उद्देश्य, जीवन का मूल उद्देश्य है या जीवन में होने वाले हित, अहित, सुख और दुख, इन चार विधाओं से, इन चार प्रभावों से ये सिद्ध होगा कि हमारी आयु में या हमारे जीवन में किस तरह की घटनाएं या सेहत से संबंधित विधाएं या प्रभाव उत्पन्न होंगे। और इसी के आधार पर आयुर्वेद और आगे अपने आप को विकसित करता जाता है, और इसी तरह से प्रत्येक प्रकृति के विभिन्न चरणों में हम उसकी वैविध्यता को अनुभव करते हैं। अब इसमें एक और एस्पेक्ट आता है कि इकोलॉजीज ऑफ हीलिंग एंड आयुर्वेदा, क्योंकि हमारी संस्कृति में आयुर्वेद की एक बहुत महत्वता है, क्योंकि आयुर्वेद सिर्फ एक विधा नहीं है जो सिर्फ आपको सेहतमंद बनाए। तो पहले तो मैं नीलम मैम और रविंद्र गोस्वामी और आपके सभी जो ज्ञान कुंभ के जो आयोजक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं 5 मिनट के लिए थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बताती हूँ कि मैं अब तक क्या मैंने डिस्कशन किया। तो अभी तक हमने डिस्कशन किया कि जो मेरा विषय है इकोलॉजिकल कल्चरल डाइवर्सिटी, हीलिंग एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो इस विषय के बारे में मैं ये कहना चाहती थी कि जो प्रकृति है, भारतीय ज्ञान परंपरा में हमें 2 चीजें बहुत महत्व की है जिसे हमें समझना होगा, और ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से नहीं, इनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से कोई महत्व नहीं है। इसका मूल आधार ये है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में इकोलॉजिकल कल्चर डाइवर्सिटी का आधार, इस इकोलॉजिकल कल्चर डाइवर्सिटी जब हम कहते हैं तो इसका मूलक आधार है प्रकृति और पुरुष का अंतर संबंध। यानी कि पुरुष वो व्यवस्था है जो प्रकृति की वैविध्यता को समझने का नियत रूप से, यानी कि अविरत रूप से अध्ययन कर रहा है। तो पुरुष विद्यार्थी है और प्रकृति ये इस पूरी व्यवस्था का, पूरी ज्ञान का उगम है। तो प्रकृति अपने आप में ही ज्ञान है, प्रकृति के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना प्रकृति नहीं। ज्ञान का आधार ही प्रकृति है, और ये जो पूरी ज्ञान परंपरा आज हमारे समक्ष इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में उपस्थित है वो प्रकृति से उत्पन्न हुई है, और पुरुष उस प्रकृति के अविरत ज्ञान का अविरत रूप से अध्ययन करने का माध्यम है। तो पुरुष और प्रकृति सिर्फ स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का भाव नहीं है, वो एक सरेंडरिंग पोस्चर है। पुरुष अपने आप में प्रकृति के समक्ष खुद को नतमस्तक करता है, और उस आधार पर वो भारतीय ज्ञान परंपरा का विकास कर रहा है। इस आधार पर हम भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने की कोशिश करते हैं।
और इसी ज्ञान परंपरा का एक अंश है सेहत या स्वयं का उपचार करना या स्वयं को मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक रूप से शुद्ध और सेहत स्वरूप में रखना। इसे हम इकोलॉजिकल कल्चर डाइवर्सिटी के थ्रू इस आज के इस ज्ञान कुंभ के इस लेक्चर सीरीज में ये समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। डिस्कनेक्ट होने से पहले मैंने इसके बारे में कहा था कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जो सेहत से जुड़ी ज्ञान की भावना है, ज्ञान का अर्थ है, उसे हम इस तरह से देखते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में आयु का अर्थ जीवन है। आयु का अर्थ सिर्फ उम्र से नहीं होता, आयु स्वयं में जीवन है। और आयुर्वेद का अर्थ हुआ वो सतत चलता हुआ ज्ञान जो हमें जीवन में सेहतमंद और सकुशल रहने का सतत ज्ञान देता हो, वो आयुर्वेद। और इसी आयुर्वेद के आधार में हम समझना चाहते हैं कि हमारी आयु यानी हमारे जीवन में हम कोई भी घटना या दुर्घटना किस तरह से अनुभव करते हैं जब हम उसमें हित अहित, सुख और दुख, इन चारों प्रकार की आयु का वर्णन करते हैं और उसे ही हम आयुर्वेद कहते हैं। ये वशिष्ठ और वशिष्ठ की 2021 की एक पुस्तक का उद्धरण भी है और चरक संहिता में भी इस उद्धरण की विवेचना की गई है। तो जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं या आयुर्विज्ञान की बात करते हैं, तो आयुर्वेद या आयुर्विज्ञान की सबसे मूलक आधार है कि वो प्रकृति मूलक है। आयुर्वेद का ज्ञान प्रकृति मूलक है, यानी कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई घटना जो भी हमें हित या अहित या जिसे कहेंगे हिताहितम सुखम दुखमायुस्य तस्य हितामहितम महाना च तच्च यत्रोकदम आयुर्वेदः स उच्येत। यानी आयुर्वेद मेडिसिन रिजुवेनेटिंग का जो प्रोसेस है, ये चरक संहिता की, जिसे हमने ऊपर भी देखा, हितामहितम दुखमस्य, जिसमें हित अहित की जो संकल्पना है वो कहाँ से आ रही है? हमारे प्रकृति के साथ हमारे संबंधों से। हमारा हित और अहित और हमारा दुख और सुख इस बात से निर्भर करता है कि हम अपनी जो पुरुष संबंधित जो संस्कृति है उसका मूल रूप से हम प्रकृति के साथ अपना संबंध कैसे रखते हैं। हमारा हित और अहित और हमारा दुख और सुख उसी से संबंधित है। हम जितना अपनी प्रकृति से निहित होंगे, संबंधित होंगे, उतनी ही हमारी आयु में दुख और सुख की उसके स्वरूप की आधार हमें बताएगा। इसे हम इस तरह से समझेंगे कि प्रकृति हमारी संस्कृति का आधार है। प्रकृति बिना संस्कृति नहीं, संस्कृति का आधार ही प्रकृति है। और पुरुष उस संस्कृति से उत्पन्न, प्रकृति से उत्पन्न संस्कृति का नित्य नव स्वरूप में अविरत रूप से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। और इसी प्रयास की परिचय, उसी प्रयास की जो संबंधित घटनाएं हैं, उससे हमें समझ में आता है कि हम अपने जीवन में किस तरह की सेहत या आयुर्वेद की परंपराओं को अपने अंदर निहित करें। तो आयुर्वेद एक ग्रंथ ही नहीं है। आयुर्वेद सतत चलती हुई एक चलायमान प्रक्रिया है जो मनुष्य की प्रकृति और उसकी संस्कृति से निहित है। I hope I am able to make you understand this dynamics. अब में से कितने अभी तक जो मैंने समझाया? It's very clear, ma'am. At least to me, it's very clear. Yeah, बहुत but I think अच्छे से समझ में आ रहा है. But मेरे ख्याल से मैं अभी एक छोटा सा पॉज लेती हूँ। अगर विद्यार्थी या जो भी हमारे समकक्ष हैं, इस पे बीच में अगर आप में से कोई भी इंटरेक्ट करना चाहे या जो ना समझ में आए, प्लीज आप पूछते रहिए। हाँ, 3 या 4 अभी स्लाइड्स हो चुके हैं और मैं काफी कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसके बारे में एटलीस्ट आपको जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, उनमें से अगर किसी को कोई ऐसा पॉइंट जो न समझ में आए तो प्लीज वो बीच में पूछ सकते हैं। बीच में भी आपके प्रश्न को लिया जाएगा। किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा, आपने अभी तक जो मैंने समझाने की कोशिश की, मैं ये समझूं कि आप में से सबको समझ आया है
जो कुछ भी विवेचना। बहुत धन्यवाद ऋतु माथुर बहुत जी। ही स्पष्ट चल रहा है मैडम, और बहुत ही क्लियरली चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ती हूँ। तो ये हमें बहुत समझने की कोशिश ये हमारे कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि आयुर्वेद एक स्टैटिक, यानी कि एक ऐसा ज्ञान है जो आज से कई वर्षों पहले लिखा गया और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, वो एक स्थायिक है। जैसे हम कहते हैं ना, स्थिर ज्ञान नहीं है। हमें ये हमारे अंदर एक बहुत जैसे कहते हैं ना कि एक खुशफहमी या गलतफहमी जिसे भी कहें, हम ऐसा मान लेते हैं कि आयुर्वेद एक स्थिर ज्ञान है, पर ऐसा नहीं है। आयुर्वेद एक निरंतर चलता हुआ ज्ञान है जो प्रकृति, संस्कृति और पुरुष द्वारा उस संस्कृति और प्रकृति को सातत्य रूप से, निरंतर रूप से अध्ययन करने की प्रक्रिया है। और इसी आधार पर हमें जब आयुर्वेद को हम समझने की कोशिश करते हैं और उससे जुड़ी जो भी हमारी सेहत या हमारे उपचार या हमारे जीवन को एक अच्छा सेहत स्वरूप देने की प्रक्रिया है, उससे जुड़ी हुई है। तो ये जरूरी है कि हम ये माने कि जब आयुर्वेद को हम समझने की कोशिश करें या भारतीय ज्ञान परंपरा में उस आयु की विधा, यानी जीवन की विधा जो हमें जीवन को सबसे सुचारू रूप से जीवन की प्रक्रिया सिखाता है या सिखाती है, ऐसी विधा आयुर्वेद है। और ये हमें ये भी बताती है कि किस तरह से हमें अपनी प्रकृति से ही आधार लेकर संस्कृति का निर्माण करना चाहिए, या पुरुष को इस तरह से प्रकृति का अध्ययन करना चाहिए जिससे वो उस तरह की संस्कृति का निर्माण करे जो उन्हें एक अच्छा आयु यानी जीवन देने की विधा की तरफ आगे बढ़ाए। तो इस तरह से हम इंटीग्रेटिंग फिलोसॉफिकल ट्रांजिशन, इस तरह से हम इकोलॉजीज ऑफ हीलिंग एंड आयुर्वेदा को समझने की कोशिश करते हैं। इसी को आगे लेकर हम चलते हैं, तो हम जब थ्योरेटिकल लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं, जिसे हम पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति का समागम कहेंगे। क्योंकि देखिए, हम सिर्फ भारतीय ज्ञान परंपरा का अर्थ यही नहीं है कि हम अपनी ज्ञान की परंपराओं में जड़ होकर जटिल बने, बल्कि ज्ञान एक निरंतर चलती प्रक्रिया है जिसमें हम वस्तुओं का समागम करते हुए चलते हैं। और यही ज्ञान कुंभ है, जब हम कई विधाओं को, कई सोच और परंपराओं को एक दूसरे से जोड़ते हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स एंड बेसिस ऑफ हीलिंग फिलॉसफी इन हिस्टोरियोग्राफी। अब क्योंकि मैं इतिहास की हूँ, तो हम इस इतिहास की परंपरा को कैसे समझने की कोशिश करेंगे। तो इसे हम ऐसे देखते हैं कि जब हम प्रकृति और मानव का जो अंतर संबंध है वो रेजिलिएंट है। रेजिलिएंट क्या मानी? जो स्वयं को पुनर्निर्मित करता रहता है। तो कई बार हमें लगता है कि हम जब प्रकृति के विनाश की तरफ जा रहे हैं या प्रकृति को हम विनाश की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो क्या प्रकृति नष्ट हो जाएगी? पर ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा होकर भी नहीं होता, क्योंकि प्रकृति अविरत है। प्रकृति मतलब प्रकृति एक पूर्ण सत्य है। हम प्रकृति का नुकसान कर प्रकृति का नुकसान नहीं करते। हम प्रकृति का विनाश जब करते हैं तो हम प्रकृति का विनाश नहीं कर रहे, हम खुद का विनाश कर रहे हैं। क्योंकि प्रकृति स्वयं को रेजिलिएंट, यानी प्रकृति स्वयं को बहुत ही, जब वो स्वयं को पुनर्निर्मित करती है तो बहुत अपनी सभी जो विधाएं हैं, सभी जो उसके अंश हैं, उनको बहुत अच्छे से पुनर्निर्मित कर लेती है। और ऐसे में जो भी हमने निर्मित किया है, जो भी हमने अपने अहम के आध्यात्म से, हमने अपने अहम के आधार पर निर्मित किया है, प्रकृति उसे एक सेकंड भी, एक क्षण भी नहीं लगता, वो उसको बदलकर स्वयं को रेजिलिएंट यानी पुनर्निर्मित कर लेती है। तो इसी परंपरा के अंतर्गत प्रकृति स्वयं की, प्रकृति को जब हम रेजिलिएंट यानी कि जब, जिसे हम इंग्लिश में उसे हम हर थ्योरी कहते हैं, HER, ह्यूमन एनवायरमेंटल रेजिलियंस, यानी कि ह्यूमन नेचर या ह्यूमन एनवायरमेंटल रेजिलियंस भी कहते हैं, जिसमें प्रकृति और पुरुष जब इस बात को समझते हैं, इस विधा को, या जब मनुष्य या पुरुष
इस आध्यात्म को समझता है कि प्रकृति को विनाश की तरफ ले जाकर वो स्वयं का ही विनाश कर रहा है, तो ऐसी प्रकृति, ऐसे चरण में या ऐसे समय में, ऐसे वक्त में वो एक पुनर्निर्मिति की संज्ञा की तरफ जाते हैं और उस व्यवस्था को हम ह्यूमन नेचर रेजिलियंस कहते हैं। और इसी परंपरा के थ्रू, इसी परंपरा के माध्यम से या इसी प्रक्रिया के माध्यम से हम जिस व्यवस्था को खड़ा करते हैं या हम जिसे हम उपचार या उपचारात्मक व्यवस्था को हम खड़ा करते हैं, उसे हम इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ हीलिंग से जोड़ते हैं, which inspire us to live in close proximity with nature to ensure a lifestyle which governs our आयु and its Veda, that is knowledge. आयुर्वेद का मूल अर्थ क्या है? आयु यानी जीवन और वेद मतलब ज्ञान। तो जीवन से जुड़ा ज्ञान यानी आयुर्वेद। तो जब हम मनुष्य ने जब प्रकृति को विनाश की तरफ लेकर गया, तब उसे पता चला कि उसने क्या हित अहित, दुख और सुख से खुद को जोड़ा, और इस हित अहित, दुख और सुख की इसी परंपरा से वो जिस उपयोजन का निर्माण करते हैं संस्कृति और प्रकृति और पुरुष के रूप में, उसे हम एक विधा कहते हैं, आयुर्वेद की उपचारात्मक विधा। उपचारात्मक विधा का निर्माण ही तब होता है जब हम किसी विनाश की प्रक्रिया की तरफ जाने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद है जब कोविड हुआ, जब हम सब लोग कोविड से जूझ रहे थे, तब हमें ये पता चला कि हमने प्रकृति का कितना विनाश कर दिया, और उस प्रकृति के विनाश की प्रक्रिया से ही हमें समझ में आया कि अगर हम लोग अब इस तरह के उपचारात्मक व्यवस्था अगर हमने नहीं लाई तो हमारा विनाश निश्चित है। तो उपचार की वो जो प्रक्रिया है या उपचार का वो जो चरण है, वो प्रकृति की निर्मिति का अंश है। उपचार आयुर्वेद का एक अंश है, मूलक नहीं। तो ये क्या है? दिस इज ह्यूमन नेचर रेजिलियंस थ्योरी या ह्यूमन एनवायरमेंटल रेजिलियंस थ्योरी। वो तब आती है जब हम उपचार की तरफ जाते हैं। आयुर्विज्ञान में वो उपचार की विधा करते हैं, पर मूल आधार क्या है कि हमें उपचार की तरफ जाना ही क्यों पड़ता है? उपचार तो तब आता है ना जब, जिसे हम क्या कहते हैं, उपचार क्या है? उपचार एक पीड़ा सहने के बाद का उपयोजन है। लेकिन पीड़ा तक हम जाएं ही क्यों? हमें पीड़ा से पहले ही खुद की रोकथाम करनी होगी। हमें पीड़ा तक पहुंचना ही नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि ये करने से पीड़ा होगी, तो वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें निरंतर रूप से अपनी प्रकृति से उत्पन्न संस्कृति का अध्ययन करते रहना होगा, और उसी के आधार पर हम आयुर्वेद के मूलक सिद्धांत यानी कि सेहत यानी कि हितकरनी जीवन की परंपरा को निर्मित करेंगे। इसीलिए प्रत्येक संस्कृति में जो प्रकृति मूलक होती है, उसमें जीवन के ऐसे उपयोजन दिए जाते हैं जिससे हम पीड़ा के मार्ग पर ना जाए। प्रकृति मूलक संस्कृतियों की परंपराओं में यह आधार होता है कि हमें इस तरह का जीवन निर्माण करता है जिससे हमारे अंदर पीड़ा उत्पन्न ही ना हो, क्योंकि हम प्रकृति का अहित करेंगे ही नहीं तो हमारा भी अहित नहीं होगा, और इसी तरह से हमें पीड़ा भी नहीं झेलनी पड़ेगी। ये है एक प्रकृति मूलक आयुर्विज्ञान की आधार की ज्ञान। अब हम इसमें इसी हिस्टोरियोग्राफिक एस्पेक्ट, हिस्टोरियोग्राफी यानी कि इतिहास का, तो आयुर्वेद का जो ऐतिहासिक अध्ययन है वो हम किस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो कई आयुर्वेद की जो संकल्पनाएं हैं हमें लिखित रूप में मिलती हैं, लेकिन कई आयुर्वेद की संकल्पनाएं हमें लिखित रूप में नहीं मिलती, क्योंकि वो प्रकृति मूलक संस्कृतियों का आधार है, और उनमें जो निहित आयुर्विज्ञान के सिद्धांत हैं वो उनकी परंपराओं में निहित है। वो हमें लिखित रूप में उपलब्ध आज भी नहीं हो पाए हैं, क्योंकि हर बात को, हर ज्ञान को लिखित रूप में नहीं संजोया गया।
लेकिन कुछ माध्यम हैं जिसमें हमें आयुर्वेद के लिखित साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें आयुर्वेद का ही उपवाद है। आयुर्वेद अपने आप में एक बहुत बड़ा ज्ञान है और उसका एक उपवेद यानी कि उसके कुछ ज्ञान के संचयन हमें कुछ ग्रंथों में मिलते हैं जो हमें कहीं ना कहीं लिखित रूप में प्राप्त हुए। लेकिन उनमें से बहुत सारा ज्ञान आयुर्वेद का बहुत वैश्विक स्तर पर उद्धृत या वैश्विक स्तर पर प्रसारित ज्ञान हमें लिखित रूप में नहीं मिलता। वो हमें प्रकृति और संस्कृति से आधारित मूलंग संस्कृतियों के सांस्कृतिक परंपराओं, जीवन शैली और उनकी परंपरागत मौखिक जीवन की रीतियों में मिलता है। तो पहला एक जो हमें उपवेद मिलता है आयुर्वेद से जो वो है अथर्व और अथर्ववेद, जिसे हमें कई लोग आयुर्वेद और अथर्ववेद को हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आयुर्वेद और अथर्ववेद एक दूसरे के पूरक हैं, पर ऐसा नहीं है। ये कुछ धारणाएं हैं जो हम समझने की या हमें कहीं ना कहीं दी गई है। दूसरा एक बहुत बड़ा उदाहरण है ऋग्वेदा, अकॉर्डिंग टू सम स्कूल और इज अ पंचम वेद। तो ऋग्वेद के अनुसार आयुर्वेद अब स्वयं में एक पंचम वेद है, जिसमें कई तरह के ज्ञान की परंपराएं हमें देखने को मिलती हैं, जो जीवन के आयु यानी कि जीवन के सुखमय या जीवन के प्रकृति, पुरुष और संस्कृति के नियमों को हमें समझाने की कोशिश करती हैं। और इसी परंपराओं में हमें कई ऐसे उद्धृत ऋषि मुनि या ज्ञान परंपराओं के जो स्रोत साधन स्वरूप पुरुष थे वो भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे अग्निवेश, अत्रेय, धन्वंतरी आदि। इसी तरह से यजुर्वेद की में भी कई संहिताएं ऐसी जुड़ी हुई हैं जो हमें आयुर्वेद के कुछ साक्ष्यों या कुछ दर्शन का ज्ञान देती हैं, और इन्हें हम संहिताओं के स्वरूप में, आयुर्वेद के अंश के स्वरूप में देखते हैं। और इसी तरह से एक पुरुष मेद है, यजुर्वेद में हमें पुरुष मेद का वर्णन मिलता है, जो ये बताने की कोशिश करता है या जिसमें ये बताया गया है कि जो पुरुष मेद यानी कि प्रकृति और संस्कृति के अंतर संबंध को जिसने समझा वो है पुरुष मेद। वो पुरुष मेद की विधा है। तो मैं जैसा आप लोगों से चर्चा कर रही थी कि जब हम इतिहास, हिस्टोरियोग्राफी का अर्थ होता है जब हम इतिहास में जाकर ज्ञान की परंपराओं का पुनर्अध्ययन करते हैं और हम सत्य साक्ष्यों के आधार पर करते हैं। हम देखने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से साक्ष्य थे जिनके आधार पर हमने आज की ज्ञान परंपराओं को हमने आज की ज्ञान परंपराओं को समझने की कोशिश की है। तो कई बार हम देखते हैं कि हम जैसे अगर हम आज की परंपराओं को देखें या आज हम ऐसा समझते हैं कि जो कुछ आज हम जिसे आयुर्वेद कह रहे हैं वो हजारों सालों से चला आ रहा है। अवश्य आज जो जिसे हम ज्ञान परंपरा कह रहे हैं, जिसे हम आयुर्वेद कह रहे हैं, ये सत्य है कि वो कई वर्षों से चली आ रही ज्ञान परंपरा है, पर वो किसी एक कालखंड में ही पूर्ण रूप से लिखी नहीं गई। उसे लिखने में कई सहर्ष वर्षों का कार्यकाल लगा, और हर कार्यकाल में उस ज्ञान की परंपरा में कुछ नया उसमें जोड़ा गया, कुछ नई श्रृंखलाएं, कुछ नई कालखंड उसमें जोड़े, कुछ नई ज्ञान एक श्रृंखला है और हर कालखंड में उस श्रृंखला में कुछ नई कड़ियां जोड़ी जाती हैं। तो जब हम इतिहास के संदर्भ में आयुर्वेद के देखने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि आज जिसे हम आयुर्वेद कह रहे हैं वो कई सहर्ष वर्षों से चली आ रही ज्ञान परंपराओं का एक समागम है। वो अपने आप में एक ज्ञान कुंभ है, वो अपने आप में एक परंपराओं का कुंभ है, जब बहुत सारी परंपराएं आकर मिली और उन्होंने एक ज्ञान परंपरा का निर्माण किया। और आज भी बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो अभी भी उस ज्ञान की परंपरा से जुड़ने, श्रृंखलाबद्ध होने की प्रक्रिया में अविरत रूप से कार्यबद्ध है, क्योंकि पुरुष और प्रकृति के बीच में चलने वाला सतत संवाद एक कालखंड के लिए ही निहित नहीं है। उदाहरण स्वरूप आज जिस तरह का जीवन हम अपनी प्रकृति के साथ जी रहे हैं, आज से
100 साल छोड़िए, आज से 20 साल पहले भी वो ज्ञान व्यवस्था हम नहीं जानते थे, वो ज्ञान व्यवस्था हम जीने की। फॉर एग्जाम्पल आज मैं आप लोगों को 1000 किलोमीटर दूर से बैठकर लेक्चर दे रही हूँ, क्या आज 10 साल पहले हम ये बात सोच सकते थे? बिल्कुल नहीं, है कि नहीं? तो ये क्या है, ये एक व्यवस्था है, ये एक ज्ञान की स्वरूप, प्रकृति, पुरुष और संस्कृति का सतत चलायमान व्यवस्था का स्वरूप है, जो पहले नहीं था लेकिन आज है। तो इस तरह से हम व्यवस्थाओं और ज्ञान की परंपराओं को देखते हैं। तो इसी श्रृंखला में जब हम वक्त में पीछे जाने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ व्यवस्थाएं मिलती हैं, कुछ ज्ञान के कोश मिलते हैं। उसमें सबसे प्रमुख तो है अथर्ववेद, जो जिसे उपवेद ऑफ अथर्व, ऐसा माना जाता है कि अथर्ववेद का ही एक उपवेद के स्वरूप में आयुर्वेद है, लेकिन वो पूर्ण आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद की कुछ पुरुष और प्रकृति के कुछ संवादों का अंश वो आयुर्वेद था, ये अपने आप में संपूर्ण नहीं है। तो अथर्ववेद में हमें उसके कुछ उद्धरण या उसके कुछ श्रृंखलाएं उस कालखंड में, अथर्ववेद जब हम आज ऐसी ऐतिहासिक रूप में या पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार आज से कुछ 10,000 या 15,000 वर्ष पूर्व वेदों की रचना हुई, तो उसमें उस आयुर्वेद का उदाहरण या उस आयुर्वेद का हमें विवेचन मिलता है। उसी तरह से ऋग्वेद ने आयुर्वेद को अथर्ववेद न मानते हुए उसे पंचम वेद की उपाधि भी दी है। मुस्कान, मैं ये स्लाइड एक्सप्लेन करके आपका प्रश्न लूं? आपने शायद हैंड रेज किया है, आपने हाथ ऊपर किया है, तो मैं ये स्लाइड एक्सप्लेन करके मैं आपका प्रश्न लेती हूँ। तब तक आप अपना प्रश्न चैट बॉक्स में लिख दीजिए। उसी तरह से प्रकृति और पुरुष के बीच में जो संवाद हो रहा था, प्रकृति, संस्कृति और पुरुष के बीच में जो नित नया संवाद हो रहा था, वो हमें अग्निवेश, अत्रेय और धन्वंतरी, इन पुरुषों के संवाद के स्वरूप में भी मिलता है। इसी तरह से यजुर्वेद में आयुर्वेद की कुछ संहिताएं हमें देखने को मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आयुर्वेद से जुड़े हुए जो ज्ञान परंपराएं हैं वो हमें सिर्फ अथर्ववेद में मिल रही है। हमें कुछ अंश, कुछ संहिताएं आयुर्वेद से जुड़ी हुई, यानी मनुष्य, प्रकृति और पुरुष के उपचारात्मक और सेहत से जुड़े हुए जो अंश हैं वो हमें यजुर्वेद में भी मिलते हैं। और इसी तरह से यजुर्वेद में का एक बहुत बड़ा अंश है पुरुष मेध, जिसमें पुरुष और प्रकृति से जुड़ी हुई मेधाओं के बारे में वर्णन हमें मिलता है। मैं मेरे ख्याल से मैं बृहत्त्रयी पहले लेती हूँ। मैं कुछ एक प्रश्न शायद आया था, उसको लेने की कोशिश करें। मुस्कान मुकू, आपका कुछ प्रश्न था? यस मैम, माफी चाहती हूँ आपको डिस्टर्ब करने के लिए, बट मुझे ये बोलना था, अभी आपने जो एग्जांपल दिया कि आप हजारों किलोमीटर की दूरी पे होकर इंटरनेट के थ्रू आप हमसे बात कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन मेरे कहीं ना कहीं इस चीज में फायदा तो है कि हम लोग आप एक दूसरे से कनेक्ट हैं। बिल्कुल फायदा। इससे प्रकृति का कहीं ना कहीं नुकसान भी है, हम इसका विनाश भी कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम नेट का यूज करते हैं, जो भी वायरस उत्पन्न होते हैं उससे चिड़ियों को और पक्षियों को नुकसान होता है, कई हद तक मर जाते हैं वो। तो आप जरा उस पर कुछ प्रकाश डाल दीजिए। बिल्कुल, देखिए वही है कि जब हम किसी विधा को बढ़ाते हैं, इसे हम देखें कि अगर हम अपने पौराणिक कथाओं में जाएं तो पौराणिक कथाओं में एक हमें स्वरूप मिलता है कि हमारे पूर्वज बहुत वर्षों पहले संप्रेषण की विधा जानते थे, जिसका एक छोटा सा उदाहरण हमें मिलता है जब विदुर ने संजय थे, उन्होंने पूरा महाभारत धृतराष्ट्र को संप्रेषण के थ्रू बताया। तो हो सकता है वो टेक्नोलॉजी, हालांकि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये एक एब्सर्ड स्टेटमेंट भी माना जाएगा, लेकिन हो सकता है ये विधाएं, जीवन की ये विधाएं उस कालखंड में रही हो, क्योंकि जब हम अपने कल्पों की संज्ञा देखते हैं, जब हमारे वेदों में कल्पों की संज्ञा, और ऐसा माना जाता है कि अभी 7वां कल्प चल रहा है ना, तो अभी 3 कल्प और बाकी हैं, तो फिर उसके बाद हमारे पास कलयुग आएगा और ऐसा चलेगा। हालांकि कलयुग शुरू हो गया है, लेकिन उसमें भी कल्प आ रहे हैं। तो कैसा होता है, आपको जो अगर ये वाली स्लाइड याद हो, इस स्लाइड में मैंने इसी चीज को ये वाली स्लाइड अगर आपको याद है, तो मैं इस स्लाइड में इसी चीज की विवेचना कर रही थी
कि जब हम मनुष्य विनाश की तरफ जाते हैं तो प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति हमारे विनाश को प्रकृति का मूल प्रकृति का एक और पर्यायवाची है जो स्वयं को प्रकृति धरती है, जो धारण करती है। प्रकृति धरती है जो धारण करती है, यानी कि जो जितना ज्यादा सहन, इसीलिए प्रकृति की सहनशीलता को हम बहुत मान्य देते हैं, उसको हम बहुत मान देते हैं, उसका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन प्रकृति की सहनशीलता या धरती और प्रकृति की सहनशीलता का एक चरम है, और वो चरम जब हम पार करते हैं तो क्या होता है? हम विनाश की तरफ जाते हैं। और प्रकृति कैसी होती है? अपने आप को पुनः पुनर्जीवित करती है। इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है कि हम इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ये समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे जैसे हम विनाश की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हम आयुर की बजाय उपचार की तरफ जा रहे हैं। हम जीवन में अहित करते करते उपचार की तरफ बढ़ने लगते हैं आयु, और इसी वजह से हमें एक नश्वरता की तरफ जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जीवन में एक वो व्यवस्था है जब उम्र यानी जीवन और वर्ष, आप कितने वर्ष के हो गए ये मायने नहीं रखता, लेकिन जैसे जैसे हम विनाशकारी प्रवृत्ति की तरफ जाते हैं प्रकृति में, तब हमारा जीवन आयु से अलग हो जाता है। जीवन और आयु में हमें भेद देखने को मिलने लगेगा, और यही जो व्यवस्था है ये हमें किस तरफ ले जाती है? आयुर्वेद के जीवन के स्वरूप को छोड़कर उपचारात्मक स्वरूप को ले जाने की तरफ। तब हम क्या कोशिश करते हैं कि हम आयुर्वेद से उपचार की प्रक्रियाएं जोड़ रहे हैं। अब हम आयुर्वेद में क्या देख रहे हैं? अजवाइन खाओ तो पेट ठीक हो जाएगा। हम ये नहीं देख रहे कि अजवाइन खाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम विनाशात्मक स्वरूप में जा रहे हैं। तो आज हमारे देश में या हमारे पूरे वैश्विक स्वरूप में अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई है? हमारा रिटेंशन, ADHD, सब लोगों की मेमोरी लॉस होता जा रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम विनाशात्मक स्वरूप में जा ही रहे हैं। तो प्रकृति का भी एक रेजिलियंस है। आप मुस्कान, आप समझी? प्रकृति जब हमें रोग देती है तो वो विनाश के, जो हम प्रकृति का विनाश कर रहे हैं उसका एक उदाहरण है या उसका एक स्वरूप है। अगर हम जब हम प्रकृति का विनाश करते हैं तो प्रकृति हमें कहीं ना कहीं रोग भी देना शुरू करती है, और ये रोग हमारे जीवन से हमारी उम्र की तरफ लेके जाते हैं। हमारा जीवन कम होने लगता है और हम उम्र के आधार से जुड़ने लगते हैं। अब आपने देखा होगा कि हमारे पुराणों में, या सिर्फ हमारे पुराणों में ही नहीं, हर वो संस्कृति जो प्रकृति मूलक है उसमें आयु का जीवन से अंतर संबंध नहीं है। जीवन और आयु अलग अलग नहीं है, जीवन और आयु एक है। यानी कि जीवन कितना भी लंबा क्यों ना हो, उसमें रोग की क्षमता नहीं है। इसीलिए लोग 1000 साल भी जी रहे हैं, 2000 साल भी जी रहे हैं। लेकिन हम क्योंकि प्रकृति से अलग है, हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, तो हम क्या होते जा रहे हैं? हम आयु से आधारित है। हमारे लिए आयु हमारे जीवन कार्यकाल को कम करने का साधन बनती जा रही है। और अगर हम जीवन ले भी रहे हैं तो बहुत उधार का है। मतलब आपका जीवन भले ही बढ़ रहा है लेकिन उसकी कार्य क्षमता कम होती जा रही है। आप 80 साल के हैं लेकिन आपकी कार्य क्षमता नहीं है। तो ये कुछ प्रकृति के साइड इफेक्ट्स बोलेंगे ना, प्रकृति हमें इस तरह से साइड इफेक्ट्स देती है, और ये चीज हमें आयुर्वेद में चर्चा स्वरूप में देखने को मिलती है। अब इस समझाने के लिए शायद मैं समझा पाई आपको, मैं ऐसा समझ सकती हूँ। यस मैम, हो गया मेरा क्लियर, जो डाउट था वो हो गया क्लियर। चलिए, थैंक यू। अभी हम आगे चलते हैं, वो है एक बृहत्त्रयी। अब जब हम आयुर्वेद की इस परंपराओं में जाते हैं तो आयुर्वेद की इन परंपराओं में सबसे मूलक आधार क्या है कि हमें 3 तरह के परंपराएं देखने को मिलती हैं। एक है बृहत्त्रयी, दूसरा है लघुत्रयी और तीसरा है निघंटु। बृहत्त्रयी मतलब वो प्रकृति और पुरुष की सांस्कृतिक अध्ययन की परंपराएं जिसमें ज्ञान और जीवन के आधार को विस्तृत रूप से समझाने की प्रक्रिया की गई। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम, जो वाग्भट के द्वारा हमें दी गई। अष्टांग हृदयम संहिता, सुश्रुत संहिता और चरक संहिता वो आयुर्वेद के अंश हैं जो बृहत्त्रयी के रूप में, जिसे हम कहते हैं ना मेगा टेक्स्ट, जिसे हम मेटा नैरेटिव्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका उदाहरण आप इस तरह से समझिए कि हम जब टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, जब आप MA करती हैं या BA कर रहे हैं या कुछ हायर एजुकेशन सिस्टम में जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे जो टेक्स्ट हैं
वो बहुत रिच है। यानी कि जैसे हम देखें कि हम महाभारत और रामायण में भारतीय संस्कृति के ज्यादा से ज्यादा उदाहरण देखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे टेक्स्ट क्या होते हैं, हमें हमारे ज्ञान परंपराओं का एक मूलक, एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें समझने का आधार है वो। इन 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 आयुर्वेद की ज्ञान परंपराओं के इन साक्ष्यों का, इन ऐतिहासिक साक्ष्यों को हम बृहत्त्रयी के नाम से जानते हैं। उसी के दूसरे स्वरूप में हमें मिलते हैं लघुत्रयी। अब इन बृहत्त्रयियों में भी हमें मूलक ग्रंथ कितने मिले हैं ये भी मुश्किल क्या कहना। अब क्रोनोलॉजी एंड हिस्टोरियोग्राफी में अगर हम जाएं तो हमें सुश्रुत संहिता, जो सबसे पुरानी सुश्रुत संहिता हमें मिलती है, वो 8,878 वर्ष की मिलती है। यानी कि हमें मूलक सुश्रुत जो सुश्रुत संहिता है वो आज भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। वो हमारे पास कहीं ना कहीं मौखिक रूप में उपलब्ध है, लेकिन वो मूल ग्रंथ के रूप में हमारे पास नहीं है। उसका एक बहुत ही विघटित रूप या बहुत ही एक बहुत ही परिष्कृत रूप हमें 1878 में मिला, जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट है सुश्रुत संहिता का, जो हमें काठमांडू में 69 एक पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में मिला। और ये कैसर लाइब्रेरी में है, और ये नेपाल में ऐसा माना जाता है कि वो 878 इसकी डेट दी गई है। हालांकि वो उसे क्लेम कर रहे हैं कि वो 699 का है, लेकिन वो उसकी जब डेटिंग की गई, उसका जब दिनांक निकाला गया तो 878 के आसपास का हमें मिलता है। और ये पामलीफ ऑफ सुश्रुत संहिता और सहोत्र तंत्र फ्रॉम नेपाल है, और ये मूल देवनागरी में नहीं है, ये हमें कहीं ना कहीं नेपाली और तिब्बतन स्क्रिप्ट के रूप में मिलता है, और इसमें कहीं ना कहीं वज्रयान का बहुत ज्यादा प्रभाव है। और आगे कई लोगों ने इस टेक्स्ट को, और ये कहाँ पे है आज, लॉस एंजलिस के काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट में। तो हमारे पास बहुत सारे ओरिजिनल मूलक ग्रंथ भी हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या है, बहुत सारे उद्धृत, भाषांतरित और पुनर्लिखित ग्रंथ। हमारे पास मूलक ग्रंथ कम है, और अगर हैं भी तो वो मौखिक परंपराओं में ही हमें मिलते हैं। और इसको भी कई लोग बोल रहे हैं कि ये 12वीं या 13वीं शताब्दी का हो सकता है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें जो आर्ट की गई है, जो आप इसमें यहाँ देख रहे हैं ना, जो इसमें फोटोज बनाई गई हैं, जो चित्र बनाए गए हैं, कोई लोग बोलते हैं, किस लोगों का मानना है कि 18वीं या 19वीं शताब्दी का भी हो सकता है। तो ये कुछ हमारे सामने एक प्रश्न है जो हमें इस बात से आगे बढ़ाते हैं कि हमें अपनी ज्ञान परंपराओं का कितना अध्ययन करना बाकी है। हमें हमारे ज्ञान परंपराओं के मूलक ग्रंथों का ही संरक्षण तो बाद की बात है, हमें उनका शोध लगाना पड़ेगा, हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा, हमें उन परंपराओं को समझने के लिए पहले उनका मूलक अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये क्या है, ये बृहत्त्रयी है। ये वो मूलक ग्रंथ है जो हमारे आधार है हमारी सारी ज्ञान परंपराओं का। हमारे आयुर्वेद से जुड़े सभी ज्ञान के जो प्रश्न हैं, उनके कई प्रश्नों के उत्तर हमें इन ग्रंथों में मिलते हैं, लेकिन उन ग्रंथों के मूल स्वरूप हमारे पास आज भी नहीं है, या हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास जो लेसर ट्रियाड या लघुत्रयी जिसे कहते हैं, वो हमें कुछ अन्य ग्रंथों के रूप में मिलते हैं, जैसे माधव निदानम, शांक गर्धर संहिता, भाव प्रकाश संहिता। ये कुछ लघुत्रयी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम महाभारत और रामायण देखते हैं, लेकिन महाभारत का एक अंश क्या है, भगवद गीता, या फिर रामायण का ही एक अंश है हनुमान चालीसा। तो ये क्या है, लघुत्रयी। ये कुछ अंश स्वरूप उन ग्रंथों के या उन गान परंपराओं के स्वरूप हैं जो हमें माधव निदानम, शांकर गर्धर संहिता, भाव प्रकाश संहिता के रूप में मिलते हैं, और आज भी उनका संरक्षण और उनका अध्ययन हमें और अधिक से हम कहते हैं और अधिक गहन रूप से करने की जरूरत है। उसी के बाद हमें लेटर कमेंट्रीज एंड एक्सप्लेनेशन मिलते हैं। लेटर कमेंट्रीज एंड एक्सप्लेनेशन यानी कि कई ग्रंथ हैं जो हमें मूल रूप में नहीं मिले, लेकिन हमें उनको उनके ऊपर चर्चाएं हुई, हो सकता है उनके कालखंड में या उनके बाद के लोगों में, ये क्योंकि बहुत सारी परंपराएं मौखिक थी। मौखिक यानी कि जिसे हम श्रुति, स्तुति और स्मृति कहते हैं, इस रूप में एक परंपरा दूसरी परंपरा के रूप में जाती रही। तो उस रूप में शिवदास सेन ने 15वीं शताब्दी में तत्व चंद्रिका, चरक संहिता तत्व चंद्रिका, यानी कि चरक संहिता के ऊपर एक कमेंट्री या
उसके ऊपर एक संवाद लिखा, उसके ऊपर उन्होंने अपनी कुछ कमेंट्रीज लिखी, जो उनकी समझ में आया वो उन्होंने लिखा। इसके अलावा उसी कालखंड में बहुत सारे हमारे देश में और भी कई देशों के लोग आने लगे और हमारे देश में एक सांस्कृतिक समागम हुआ, क्योंकि इस्लामिक संस्कृति भारत में आई, तो उन लोगों ने भी भारत की इस संस्कृति को समझा ही नहीं बल्कि स्वीकार भी किया। फॉर एग्जाम्पल, हमें अल-बरूनी का एक साधन, अल-बरूनी जो मोहम्मद गौरी और बाद में इल्तुतमिश के साथ आते हैं, तो सॉरी नॉट इल्तुतमिश, मोहम्मद गजनी के टाइम पे आ रहे हैं, अल-बरूनी और उसके बाद गौरी के टाइम पे आते हैं। तो अल-बरूनी 1 साल तक बनारस में रहते हैं, उस वक्त काशी में, और वो कई जो अध्ययन, जो कई संहिताएं थी उनका भाषांतर, अनुवाद करते हैं फारसी और तुर्की भाषाओं में। उसी दौरान मदल अल शिफाए सिकंदरी शाही भाई मियां भुआ, दस्तूर अल तबिया भाई फरिश्ता और तिब रंग शाही दरवेश मोहम्मद ने इन सारी जो हमारे ग्रंथ थे उनके बारे में लिखना शुरू किया और उसके ऊपर चर्चाएं भी की। तो ये कुछ है, लेकिन इसके अलावा अब जब हम ये तो लघुत्रयी और दीर्घत्रयी और बृहत्त्रयी और लघुत्रयी है। इसके अलावा निघंटु भी है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इसको हम इस तरह से उदाहरण देखिए कि जब हम रामायण पढ़ते हैं तो हमें उसमें हनुमान चालीसा को अगर हम लघुत्रयी के रूप में देखें या भगवत गीता को हम लघुत्रयी देखें, तो इसमें बहुत सारे और भी निघंटु हैं, यानी कि बहुत सारे और भी छोटे छोटे घटनाक्रम हैं, जैसे शबरी और राम जी का मिलन, उससे जुड़े हुए कुछ हमारे पास ऐसे घटनाक्रम हैं जो हमें बताते हैं कि किस तरह से और भी परंपराएं हम समझ सकते हैं। और अगर हम भी शबरी भील और माँ शबरी भील और राम जी के मिलन के बारे में अगर गहन अध्ययन करें तो हमें एक और संस्कृति के बारे में जानने की हमें पता चलेगा कि वो एक और संस्कृति भी वहां पर नहीं थी। इसी तरह से अगर हम किष्किंधा के बारे में समझने की कोशिश करें तो अपने आप में एक ज्ञान परंपरा है, अपने आप में अपनी उसकी एक खुद की मूलक प्रवृत्ति है। उसी तरह से हम निघंटु को समझते हैं कि जैसे दीर्घ बृहत्त्रयी और लघुत्रयी है, वैसे निघंटु भी हैं जो ऐसे साक्ष्य हैं, ऐसे प्रकृति और संस्कृति के मूलक संस्कृतियां हैं जिनके आज भी हमें अर्थ और उनसे जुड़े हुए विवेचन करने की प्रक्रिया हम कर सकते हैं, या आज भी उनके अध्ययन बाकी हैं, जिनका अध्ययन अभी तक नहीं हुआ। इसी में हमें पंडिता नरहरि, द ऑथर ऑफ सेलिब्रेटेड वर्क राज निघंटु, has rightly quoted, a physician without a knowledge of Nighantu, a scholar without the knowledge of Vyakarna, and a soldier without Ahidya are nothing but laughable stock in the world. This popular quote echoes the importance of Nighantu. तो उनका ये कहना है कि जब पंडित नरहरि ऐसा कह रहे हैं राज निघंटु में कि अगर एक वैद्य को निघंटु का अर्थ नहीं पता, निघंटु का ज्ञान नहीं है, तो उसे कभी भी समझ नहीं सकता कि वो कभी भी एक अच्छा वैद्य नहीं बन सकता, क्योंकि निघंटु यानी प्रकृति और संस्कृति का मूलक उस क्षेत्रीय प्रवृत्ति का स्वरूप है। देखो, जब हम आज हमारे पास 300 स्वरूप है रामायण के। रामायण सिर्फ आज जो हम रामायण पढ़ रहे हैं वो तुलसीदास जी की रामचरितमानस है। वहीं वाल्मीकि जी की रामायण अलग है। वाल्मीकि जी की रामायण का, महर्षि वाल्मीकि की रामायण का स्वरूप अलग है। और आज हमें 300 रामायण मिलती हैं। आज मैं दक्षिण में रहती हूँ, दक्षिण क्षेत्र में, और यहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर रावण की पूजा होती है। तो इसका अर्थ क्या है कि आपकी प्रकृति एक क्षेत्र विशिष्ट से जुड़ी हुई है। आपकी प्रकृति, आपकी संस्कृति और आपका पुरुष ये निर्धारित करेगा कि उस क्षेत्र का निघंटु क्या होगा, यानी कि लेक्सिकन क्या होगा। तो इसीलिए हम एसिमिलेशन की बात नहीं करते। हम हर चीज को एक जैसा नहीं बना सकते। जैसे आप अमेरिका में जाकर आप एकदम से अमेरिकन नहीं हो जाओगे, और अगर बनना भी चाहो तो हम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारा निघंटु, हमारा ग्रामर, हमारा बॉडी ग्रामर, हमारा शारीरिक जो व्याकरण है, हमारे शारीरिक और मानसिक जो स्वरूप है, वो एक अमेरिका में जन्मे और पले बड़े व्यक्ति से अलग है। तो हमारे जीवन की परंपराएं भी उनसे कहीं अलग होंगी। और ये चीज आयुर्वेद में बहुत
अभिप्रेय है, बहुत मान्य रखती है, उसका एक बहुत बड़ा आधार है। यानी कि आप सिर्फ बृहत्त्रयी कर कर किसी पर भी एक डोमिनेशन नहीं कर सकते। हमें उस व्यवस्था की प्रकृति को भी समझना होगा और तभी उसमें हम उसका पूर्ण रूप से उस व्यक्ति के आयुर्विज्ञान को हम समझ सकते हैं, या उस प्रकृति के आयुर्विज्ञान को। तो प्रकृति अपने आप में वैविध्यपूर्ण है, तो उसको एक बंडल में बांधना, एक अंजलि में रखना सही नहीं होगा। इस तरह से हम निघंटु को समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैं आई थिंक वी आर ऑलरेडी रशिंग टाइम, सो आई विल क्विकली गो थ्रू। तो इस व्यवस्था को अब पाश्चात्य अध्ययन में हम इकोलॉजिकल सेमियोटिक कहते हैं, इको सेमियोटिक। तो इकोलॉजी, सोशियो कल्चरल बिलीव्स, इकोनॉमिक्स, इंस्टीट्यूशन, ये रीजेनरेटिव है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप किसी भी व्यवस्था को जबरदस्ती किसी दूसरी व्यवस्था पर नहीं लाद सकते, क्योंकि उस व्यवस्था की अपनी एक पर्यावरणीय संस्कृति है, उस व्यवस्था की अपनी एक पर्यावरणीय अर्थशास्त्र है, उस व्यवस्था का अपना एक पर्यावरणीय व्यवस्थात्मक स्वरूप है, और उसी से आधार लेकर हम एक व्यवस्था में स्त्री पुरुष के जीवन और उससे जुड़े हुए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कर दें। और इस चीज को आजकल हम इको सेमियोटिक्स या निघंटु के रूप में भी देख सकते हैं कि ये प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, इसका हम गुणात्मक है, बराबरी है। तो कल्चर, इंटरनल नेचर, एक्सटर्नल नेचर, बायोसेमियोटिक्स, साइकोसेमियोटिक्स, इकोसेमियोटिक्स, ये सब कनेक्टेड थ्योरम्स हैं, और इसको हमें उसे एक माइक्रोकॉस्मिक रूप यानी कि सूक्ष्म स्वरूप में देखने की बहुत जरूरत है। हम उसे एक दूसरे के ऊपर अपनी व्यवस्थाओं को हम जबरदस्ती लाद नहीं सकते। हम उस पे एक जिसे हम एक्सटर्नल नेचर कहते हैं, हम उसमें एक बैलेंस, हम उसमें एक मीडियोकर, एक व्यवस्था का एक मध्यम मार्ग ला सकते हैं, लेकिन हम उसे हम जिसे कहते हैं परिष्कृत रूप से हम उसे पुश बैक नहीं कर सकते। हम उसे बहुत ज्यादा आंतरिक रूप तक उसके जो एक व्यवस्था, एक प्रकृति का जो आंतरिक संस्कृति होती है, हम उस तक नहीं जा सकते। हमें उसके एक बाउंड्री लाइन, उसके एक मध्यम मार्गीय क्षेत्र तक ही हम उसे ले जा सकते हैं, और इसी से हम इकोसेमियोटिक्स या निघंटु के स्वरूप में देखने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं अब प्रश्नोत्तरी के रूप में जाती हूँ, और कुछ प्रश्नोत्तर लेते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो क्योंकि मेरे ख्याल से मैं पिछले 1 घंटे से बोल रही हूँ, तो अभी हम थोड़ी चर्चा विषय पे आते हैं। किसी का कोई प्रश्न? मुस्कान, आपको सब समझ आ गया? मुस्कान ने प्रश्न किया था। यस मैम, आ गया, मुझे तब नहीं आया था, इसलिए मैंने बीच में नहीं कोई बात नहीं। आपको देखिए उसमें कोई परेशानी नहीं है। जब तक चीजें समझ ना आए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैंने इसलिए बीच में आपको नहीं बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। अगर प्रश्न ना आए तो इसका मतलब ये होता है या तो आपको पूरा समझ में आ गया है या तो नहीं समझ में आया, या बिल्कुल समझ में आया, या फिर आप ऑनलाइन में तो आप इसका मतलब है ही नहीं। आप कुछ और कर रहे हैं। इसलिए प्रश्न आना बहुत जरूरी है। आप अपने विचार भी रख सकते हैं, आपका जो विचार हो, आप जो भी मैम ने बताया बोला, आप उसमें अपने विचार भी ऐड कर सकते हो। वही तो निघंटु है, उसी को हम निघंटु के रूप में देखते हैं, उसी को हम इकोसेमियोटिक्स। आप में से अगर कोई बोलना चाहे, अपने विचार रखना चाहे, तो उसका भी स्वागत है। एक्चुअली मैम मुझे लगता है कि जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो कईयों के लिए ये टॉपिक नया है, तो ये भी हो सकता है कि मतलब हम वापस सुनेंगे आपके लेक्चर को तो फिर वापस समझने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस होंगे। नहीं बिल्कुल, मैं भी जब आयुर्वेद में इस चीज को समझने की कोशिश कर रही थी तो मुझे क्या लगा कि मतलब आयुर्वेद एक परम सत्य है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद एक श्रृंखला है, एक जिसे कहते हैं ना, एक शुरुआत की श्रृंखला है जिससे कई श्रृंखलाएं जुड़ती गई, और आज भी आयुर्वेद उस स्वरूप में जीवंत है जिसमें हमें उसे समझने की जरूरत है। आयुर्वेद की आप में से कोई भी आने वाले समय में कोई नया अग्निवेश बन सकता है,
कोई नया चरक बन सकता है, पर उसको क्या करना होगा, उसे उस प्रकृति और प्रकृति मूलक संस्कृति में जो आयुर्वेदिक समझना। सिद्धांत है, आयुर्वेदिक सिद्धांत है, इट्स अ फिजिक्स, जैसे हम फिजिक्स कहते हैं ना, आयुर्वेदिक सिद्धांत है जिसे हमें समझना होगा, जो प्रकृति, संस्कृति और पुरुष से निहित है। पुरुष जो प्रकृति और संस्कृति में खुद को समर्पित करके उसका जिसे कहते हैं सघन और गहन अध्ययन करता है, उसके बाद जिस ज्ञान का वो जन्म देता है वो है आयुर्वेदिक सिद्धांत से आधारित आयुर्विज्ञान की कुछ विधाएं। जी, तो उसे हमें समझना होगा। तो ये मैम आज कोई क्वेश्चन नहीं है मुझे लगता है, नेक्स्ट टाइम होंगे। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने इतना अच्छे तरीके से समझाया और डेफिनेटली हम वापस इससे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो आयुर्वेद, कई लोगों को जैसे आयुर्वेद का आपने कंसेप्ट क्लियर किया, दैट इज वंडरफुल थिंग कि आयुर्वेदा नॉलेज ऑफ लाइफ, आयुर्वेदा इज नथिंग, नॉलेज ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली, एंड आई कैन रिलेट बिकॉज आयुर्वेदा कहता है प्लांट इज मेडिसिन। आयुर्वेदा में इट इज रिटन कि प्लांट ही मेडिसिन है। तो दैट्स वाई कि हमारी जो थाली है, मतलब जो हमारी भोजन की थाली है, दैट इज अ कंप्लीट मेडिसिन फॉर अस। और आपने एक और चीज कनेक्ट की थी कि हम लोग जब बिगड़ जाते हैं तो फिर हम लोग फिर जैसे आपने अजवाइन का एग्जांपल लिया था, उपचार की तरफ जाते हैं। कहता है कि अगर आपके कोई दोष हैं, आफ्टर दैट दोष के लिए भी हमारे पास प्लांट्स में ही उसका दोष निवारण का भी कारण है। तो वंडरफुली आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और आपने त्रिदोष की बात की। आयुर्वेदा में मैम आगे अगर होगा तो हम जरूर सुनना चाहेंगे त्रिदोष को एक्सप्लेन, मतलब एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में, और उनके जो पंचभूत की बात करते हैं, वो षड रस की बात करते हैं। आयुर्वेदा के मेन कंसेप्ट है त्रिदोष, पंचभूत और षड रस। राइट। आपने प्रकृति मूलक की बात करी, आपने आयुर्वेदा का जो बताया कि मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है जब हम फिजिकली, सोशली और मेंटली फिट होंगे, दैट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ आयुर्वेदा कि हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। आपने और एक और बात की थी जो मुझे बहुत इंप्लीकेट की कि आयुर्वेदा जो आपने कहा डायनेमिक नॉलेज है, दैट इज वंडरफुल, क्योंकि ये होना हमें समझना ही चाहिए कि आयुर्वेदा चेंज विद द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। क्योंकि हम लोग जब मैंने जैसे कहा थाली की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी उत्तर भारत में थाली अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, राजस्थान में अलग है, क्योंकि वहाँ लोगों की नीड बदल जाती है। वहाँ उनके ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के कारण उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बदलती है। उनको हेल्दी रहने के लिए हर एक अलग तरीके की चीज़ें चाहिए होंगी। तो इस पर हमें डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट्स के थ्रू हमें ये आगे समझाना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक ही चलन लगा लिया है, दैट्स वाई कि हम लोग कई तरीके की बीमारियों से घिर रहे हैं। आपने बात करी उपचारात्मक विद्या की, जो उसमें आपने कोविड-19 का एग्जांपल दिया, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। और मैम मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगती है कि आपने आयुर्वेदा का टॉपिक लिया, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मतलब मैं जैसे जहाँ तक पढ़ रहा हूँ तो एलोपैथी का जो भी इलाज है, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ डॉक्टर्स, एलोपैथी या डॉक्टर कभी भी आपको कोई भी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते, इफेक्ट्स है। They suppress the ailment. हाँ, तो हमें मतलब बैक टू रूट आना ही पड़ेगा। और आयुर्वेदा में एवरीथिंग इज गिवन कि हमें प्रिवेंशन, वो वैसे बात करते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट अगर आप प्रिवेंटिव नहीं रहे, आप बीमार पड़ भी गए, आफ्टर दैट आयुर्वेदा की मदद से यू कैन रिवील अगेन। फिर आफ्टर दैट आपने जो बात करी वैदिक सोर्सेज एंड हिस्टोग्राफी की आपने बताया, तो जरूरी है कि हम हिस्टोग्राफी की तरफ जाएं, हम इसे बारीकी से समझने की कोशिश करें। प्रकृति, पुरुष एंड संस्कृति, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ही है कि हमें इन पर ध्यान देना ही है। एक और मैं कोट करना चाहूँगा, जो आपने बताया कि संजय और धृतराष्ट्र का आपने एग्जाम्पल लिया, जिसमें वो आपने कहा संप्रेषण वाली बात, जो हमारी टेक्नोलॉजी है। मैंने कई सारे ऐसे वो लेख पढ़े हैं जिसमें गुरु शिष्य परंपरा में भी ऐसा मिलता है कि वो हजारों किलोमीटर दूर रहकर अपने शिष्यों से कनेक्ट रहते थे विदाउट मोबाइल फोन। और आदि शंकराचार्य के बारे में भी ऐसा कहा गया है। ये तो मतलब महाभारत का तो कालखंड हमें नहीं, मतलब हम अनुमान लगाते हैं, लेकिन आदि शंकराचार्य का तो कालखंड हमें पता भी है। और ऐसे हमें कई उदाहरण मिलते हैं, उनके कई सारे इंसिडेंट ऐसे मिलते हैं। तो जिसमें उन्होंने सेपरेशन की बात कही, मतलब वो कई हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी अपने शिष्यों से जुड़े हुए थे। इसका मतलब है कि ये परंपराएं जो आज हम कर रहे हैं, उसका स्वरूप अलग हो सकता है, पर हो सकता है वो उस वक्त हो। मैं ये नहीं कह रही कि वो सिद्ध है,
अनुमान है, ऐसा हो सकता है। मतलब आप कह रहे हैं अनुमान है, बट मैं कह रहा हूँ कि ये सिद्ध है। मतलब मेरा मानना है कि ये सिद्ध है, क्योंकि मैं जो भी ये निकल कर आता है, बस हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। मतलब हमें अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाना पड़ेगा कि वी शुड गो फॉर डॉक्यूमेंटेशन। कोई भी हमारी परंपरा है, आसपास भी कोई छोटी चीज भी दिख रही है, जैसे आपने अजवाइन का एग्जांपल लिया, ऐसे कई चीजें आती है, छाछ का भी सिंपल एग्जांपल आता है, हमें डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है। जैसे कई सारे ऐसे केस आते थे, अभी भी मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ तो उसमें भी है कि हल्दी का पेटेंट अमेरिका ने करा लिया, तो आफ्टर दैट हमने अपने उसके हल्दी और दूध में मिलाकर कि आप बूंद सारे कर सकते हैं, उससे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास अभी इनफैक्ट आप हल्दी में भी नहीं, हल्दी में तो ठीक है हमने बचा लिया, आर एल मार्शेलकर जी का उसमें धन्यवाद, लेकिन आप रिसेंटली जापानीज जिसने एनारोबिक और एनारोबिक कॉन्सेप्ट लिया, जिसने इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट बताया, ये तो हम कितने सालों से, हम हजारों सालों से करते चले आ रहे हैं। जो व्रत की परंपराएं हैं और व्रत की परंपराओं से हमने कैंसर, अब आप बोल रहे हैं कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए तो आप कैंसर सेल को डाई कर सकते हैं, ये चीज तो हम लोग कितने वर्षों से करते चले आ रहे हैं। हमारा व्रत परंपरा ही है, व्रत परंपरा ही हमारी इससे लड़ रही थी, तो आप उस चीज को अब आज आप उसको नोबेल प्राइज दे रहे हैं, तब आप क्यों आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे? तब आप हमारी व्रत परंपराओं का मजाक बनाते हैं, बोलते हैं कि आप स्त्रियों का गुलामी कर रहे हैं। आप उसको लॉजिकली, आपने साइंटिफिकली जानबूझ के नहीं देखा। फिर रिसेंटली अभी कॉपर का कॉन्सेप्ट आया कि कॉपर इज गुड व्हेन बिकॉज इट हैज इट्स ओन। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम कहते हैं, जिस इनफैक्ट निघंटु का जो कॉन्सेप्ट मैं राइज कर रही हूँ, निघंटु बहुत हमें समझने की, हम क्या होता है कि हम बृहत्रयी और लघुत्रयी में इतने फंसे हुए हैं कि हम निघंटु की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। हम अपने सूक्ष्म जो ज्ञान परंपराएं हैं, सूक्ष्म ज्ञान परंपराएं हमारी निघंटु से जुड़ी हुई हैं, और वो क्षेत्र विशेष से जुड़ी हैं, क्योंकि प्रकृति मूलक जो संस्कृतियां होती हैं वो क्षेत्र विशिष्ट होती हैं। इनफैक्ट हम कहते हैं कि हर 3 कोस पे गांव और बोली बदल जाती है, बोली बदलती है, कोस कोस पे बदले पानी, 3 कोस पे बानी, है ना। तो जो 3 कोस पे बानी बदलती है और कोस कोस पे पानी बदल रहा है, उसका भी तो बहुत बड़ा उपचारात्मक ध्येय है, उसका भी तो बहुत बड़ा ध्येय है अपने आयुर्विज्ञान से। हम उसमें आयुर्विज्ञान क्यों नहीं ढूंढ रहे? क्योंकि ना हम अपनी भाषाओं का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, ना उनसे जुड़ी परंपराओं का, और ना हम उसको साइंटिफिकली प्रूव कर पा रहे हैं। हम उसको उतना टाइम ही नहीं दे रहे ना, हमें उनको साइंटिफिकली प्रूव करना पड़ेगा। क्यों जापानीज लोग, क्यों जर्मन लोग, क्यों फ्रेंच लोग अपनी छोटी छोटी चीजों के और परंपराओं को साइंटिफिकली प्रूव कर देते हैं? जापानीज अपनी छोटी सी अपनी इकेबाना को उन्होंने प्रूव कर दिया, अपने मतलब एक छोटा सा वो डिजाइन भी कर रहे हैं, उसको भी वो साइंटिफिकली प्रूव कर रहे हैं। व्हाट इज दिस इज, यू नो, दिस इज द एम्पिरिकल नॉलेज लॉबिंग। आप नॉलेज की लॉबिंग ही नहीं कर पा रहे। क्यों? आप लोग, हम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम आपस में इतने लड़ने में व्यस्त है कि हम डॉक्यूमेंटेशन करना, हम छोटी छोटी चीजों को में कमियां, हम नेगेटिव थिंकिंग बहुत करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी का है, वी आर नेगेटिव थिंकर्स। हम डॉक्यूमेंटेशन कर ही नहीं रहे। हम उतना समय लड़ाई दंगे में व्यतीत कर रहे हैं, गाली गलौज में व्यतीत कर रहे हैं, वाहियात कामों में व्यतीत कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन में करें, हर गांव का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, हर गांव की विचारधारा, उसकी रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा, उससे जुड़े औपचारिक और आयुर्विज्ञान की विधाएं, इन सबका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। और वही निघंटु है, वही निघंटु हमारा लघुत्रयी बनेगा और वही हमारा बृहत्रयी बनेगा। हमें इन परंपराओं को आगे लेके जाना होगा। सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, और दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, बट यू नो इट इज नॉट वन पर्सन्स जॉब। नो मैम, एक्चुअली आई आल्सो स्टार्ट। ये हमें से हर किसी को करना होगा, हमें से हर किसी को अपने गांव, अपनी जड़ों से जुड़कर उसका डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। देखिए, बहुत जरूरी है कि हम अब एक देखिए वेस्ट में या कुछ ईस्ट चाइना में या जापान में, उनमें हर गांव में एक कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग का है, स्पेशली जापान में तो बहुत बड़ा है। इसी तरह से यूरोप में है, यूरोप में दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज नॉलेज सिस्टम। तो ये डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस हमारा जुड़ना चाहिए। जब तक हम अपने सर्वेक्षण और उनका सुचारू रूप से अध्ययन करते हुए उनको एक स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट फॉर्म नहीं देंगे, तब तक हम सिर्फ ये ऊपरी काम है। ये जो हम एक विधा है या एक विचारधारा को हमने मुख्य धारा में ला तो दिया, लेकिन उससे जुड़ी हुई परंपराओं का अध्ययन एक साइंटिफिक रूप में,
क्योंकि रैशनैलिटी हमारे देश की ही उपज है। हम वो पहली संस्कृति हैं जिसने साक्षात्कार किया, विवाद किया, और जिसे हम कहते हैं, जिसे हम बहुत इम्पोर्टेंट है, हम शास्त्रार्थ कहते हैं। शास्त्रार्थ की परंपरा हमारी संस्कृति है। तो हमारी संस्कृति तो शुरू ही शास्त्रार्थ या बहस से होती है। तो बहस का मतलब ये नहीं कि हम उसे नेगेटिवली और लड़ झगड़ के एक दूसरे को अंत करें, बल्कि उससे जो निकल के आया हुआ ज्ञान है उसको संप्रेषित करके लॉजिकली डॉक्यूमेंट करें, लॉजिकली हम उसको प्रूव करें। ये हमारी संस्कृति है ना। और ये तो हर गांव लेवल पे होती थी, हर ग्राम्य स्तर पर हम शास्त्रार्थ करते थे। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन की परंपरा है, हमें इसको और ऊपर लाना होगा, हमें इसको और डॉक्यूमेंट। तभी हम सोसाइटी ऑफ नॉलेज है ना। वी आर नॉट द सोसाइटी ऑफ क्रिएटिंग कमर्शियल सक्सेस, क्योंकि वो हमारे गांव गांव में ज्ञान होता था। तो हम इसमें बिजी नहीं रहते थे कि हम बड़े बड़े घर बनाएं, हम बड़े बड़े टीवी खरीदें, बड़ी बड़ी कारें खरीदें। हम उसमें वेस्ट ही नहीं करते थे ना अपनी एनर्जी। we were investing our energies in documenting, and that we have to do, and that we have to rebuild. अगर हम आज मुख्य धारा में अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को लाकर रख रहे हैं, तो हमें भारतीय ज्ञान परंपरा की इस जो आध्यात्मिक पहलू है, इसे भी मुख्य धारा में लाना होगा कि हम कितने अच्छे से अपने ज्ञान परंपराओं का संरक्षण करते हैं और उसका संकलन करते हैं। वो भी बहुत जरूरी है। मुझे जहां तक लगता है एक और प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, वो हमारा कॉन्सेप्ट था कि हमने हमेशा माना वसुधैव कुटुंबकम। हाँ। तो इसलिए कभी हमने वो इस तरीके की बातें रखी नहीं कि हमें पेटेंट कराना है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे जाना है। हाँ, कमर्शियलाइजेशन। हाँ, हम कहीं ना कहीं हम कमर्शियलाइजेशन में वीक हो गए। पॉलिशन क्या कि पूरी दुनिया कैपिटलाइज्ड हो गई। अब कॉलोनियल कैपिटल का कॉन्सेप्ट तो फिर यूरोप ने लेके ही आया। उसे कहते हैं डोमिनेशन ऑफ नॉलेज। वो कैसा होता है जब बृहत्त्रयी आपकी निघंटु के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, तो वो पूरी बृहत्त्रयी भी लेके चले गए। अब देखियो ना, तुम्हारे चरक संहिता ओरिजिनल टेक्स्ट हमें कहाँ मिल रहा है? लॉस एंजलिस में। हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट भी नहीं है, हमारा ओल्डेस्ट। एक्चुअली हमें संभालने की आदत नहीं है ना, इसीलिए ये प्रॉब्लम तो रहेगी। चलिए, इससे पहले कि अभी सारे पार्टिसिपेंट चले जाएं, मैं जितने भी लोग हैं अभी मैं मैम को थैंक्स बोल दूं इसके लिए। और थोड़ा सा मैं जितना समझ पाई तो मैंने थोड़ा नोट डाउन किया कि मैं ब्रीफ कर दूं उसको। और आपका जो मैम ये लेक्चर था, इकोलॉजिकल कल्चरल डाइवर्सिटी हीलिंग इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो भारतीय ज्ञान परंपरा में आपने जो आज समझाने का प्रयास किया, बहुत सिंपल शब्दों में मैं कहूंगी, जिसको आप एक लाइन में नोट कर लीजिए, जिसका जिस्ट है मैम के लेक्चर का, ये जिस्ट है। ऐतिहासिक दृष्टि उन्होंने प्रदान की, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी उन्होंने बात की, दैट इज अनदर पार्ट। बट जो यहाँ जो एज पर टॉपिक जो मैम ने समझाने की कोशिश की, वो है पुरुष और प्रकृति की जो संकल्पना है उसके बारे में। और पुरुष और प्रकृति, और एक आपने एक और बात कही थी उसमें मैम, 3 टर्म थे ना, पुरुष, प्रकृति और संस्कृति। यस, पुरुष, प्रकृति और संस्कृति की जो बात आपने की, वो ये समझने की जरूरत है हमें कि एक तो आपने कहा कि ये चलायमान है, ये स्टैटिक नहीं है, ये स्थिर नहीं है। तो हमें समझने, पुरुष इट्स बियॉन्ड जेंडर। पुरुष का मतलब यहाँ नहीं कि पुरुष, तो पुरुष स्त्री से परे एक इंसान के रूप में, व्यक्ति के रूप में हमें जो समझने की जरूरत है वो है कि हमारी प्रकृति क्या है आयुर्वेदा में। मतलब हर व्यक्ति अपने प्रकृति के हिसाब से, अपने आपकी जो बॉडी है, आप उसकी जो उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है, अगर उसके हिसाब से, उसकी संस्कृति जो है उसके हिसाब से अगर आप चीजों को समझते हैं और उसके हिसाब से उसे ट्रीट करते हैं, तो लगता है कि उपचार की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर जैसे आज हमारा खान पान है, कई लोगों को बहुत सारी चीजें डाइजेस्ट नहीं होती, कई लोगों को दही सूट नहीं करता कहते हैं, कई लोगों को आजकल मिल्क की, मैंने सुना है जिसको देखो वो मिल्क प्रोडक्ट छोड़ रहा है, लैक्टोज इंटॉलरेंट। हाँ, वो बहुत हो रहा है, आ गया हमारे देश में, नया टर्म आ गया है कि अगर वो ये चीज थोड़ा सा मैंने भी अपने साथ देखा है कि अगर रात में जो पहले दूध लेते थे, अब अगर मैं लूं तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे वॉमिट फील होता है। तो ये जो मैंने अपनी प्रकृति को समझा, तो मैंने कुछ चीजें उसमें से हटा दी कि जबरदस्ती नहीं, चाहे कितना भी पसंद हो आपको,
तो ये जो है कि पुरुष प्रकृति और जो संकल्पना है, इसे समझने आयुर्वेदा आपको कहता है आप अपनी प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ट्रीट करिए। तो मैं अगर गलत नहीं हूँ मैम, आप बीच में एक बार हाँ कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही। तो ये जो संपूर्ण मैम ने कहा कि इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं आयुर्वेदा में, और इसमें मैडम ने एक पूरे दर्शन, एक इसको फिलोसॉफिकली प्रेजेंट किया। और दूसरी चीज उन्होंने बताई कि जो मुझे बहुत इसमें जो पॉइंट्स बहुत लगे कि बिल्कुल दोबारा इसको रिपीट करना चाहिए, कि प्रकृति जो है वो अपना निर्माण कर लेती है, आप उसका विनाश करिए, और वो उसका विनाश नहीं, वो आपके स्वयं का विनाश है। ठीक है, आप अपना विनाश करते हैं, प्रकृति नहीं करती। वो तो अभी 2 मिनट लगेंगे उसको, वो भूकंप और ये वो करके वो अपने आप को फ्रेश कर लेगी, बाढ़ आ गई और वो सब कुछ अपना नया कर लेगी। आप कितना भी घर बनाइए, बिल्डिंगें बनाइए, ठीक है, और कितना भी कैप्चर कीजिए आप उसकी जो जगह है, वो 2 मिनट में सब कुछ प्लेन करके और अपना एकदम से बढ़िया से फ्री हो लेगी। तो ये जो चीजें हैं कि ये हम अपना नुकसान करते हैं अपना विना, प्रकृति कभी विनाश नहीं करती, वो पुनर्निर्माण करती है। और एक ये वाली बात जो बहुत अच्छी लगी मुझे इन सब चीजों में, हिस्ट्री तो मैम ने बताई, हिस्टोरिकली जो प्रेजेंट किया। दूसरी चीज है कि जो प्रकृति की मैम हम बात कर रहे थे, उसमें जो क्षेत्र की जो बात है, डेफिनेटली एरिया वाइज आप देखिए, आप जहां भी बिलोंग करते हैं, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, आप एक बार उनके जो फूड कल्चर है ना, उसका आप एक बार लिस्टिंग करके देखिए, एक लिस्ट बनाइए और आप उसको एक ये वर्क कर सकते हैं। आप उसमें लिख लीजिए कि यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ क्या चलता है, यहाँ क्या, एंड देन जो मैम ने डॉक्यूमेंटेशन और साइंटिफिकली प्रूव करने की जो बात थी, आप भी प्रूव कर सकते हैं इसको। अभी तक अगर किसी ने नहीं किया तो आप कर डालिए, हम भी कोशिश करेंगे, हम ही कर डालें। तो उसमें ये कीजिए कि उसमें आप ये लिस्ट बना के देखिए, और फिर उस एरिया, वो जो एरिया है वहाँ जो नेचर है, जो प्रकृति है, वहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि जहां भी हम रहते हैं हमारी बॉडी वहाँ के नेचर के अकॉर्डिंग वो हम एडेप्ट कर लेते हैं। तो हमारा खान पान भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। साउथ में जाइए तो इडली, सांभर, डोसा, आप देखिए कि उसमें किस चीज की बाहुल्यता है, क्या है जो उसमें ज्यादा यूज हो रहा है। फिर उसको आप साइंटिफिकली उस अप्रोच देने की कोशिश करिए और उसकी एनालिसिस करिए कि यहाँ रहने वाले लोग यही क्यों खाते हैं। बिल्कुल, तो आपको पता चलेगा कि जो प्रकृति है, जो एक्सटर्नल और आपकी इंटरनल, आपकी बॉडी की प्रकृति और जो बाहर की प्रकृति है, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है। और उसी के हिसाब से आपका फूड हैबिट, वहां के लोगों के फूड हैबिट है। नहीं तो आप, जैसे हम उधर जाते तो हमें प्रॉब्लम होती है, वहां के लोग इधर आते तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि उन्हें एडजस्ट करने में, अडेप्ट करने में टाइम लगता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैम, तो शायद प्रकृति और संस्कृति का जो ये जो तीनों जो चीजें आपने बताई, मुझे लगता है ये इंटरकनेक्टेडनेस है, ये हमें इसी तरफ लेके जाता है। और आयुर्वेदा हमें समझाता है कि अपनी प्रकृति को पहचानिए और उसके हिसाब से अपनी बॉडी को ट्रीट करिए। उपचार की तरफ जाने की बजाय उधर जाने का की आपको जरूरत ही ना पड़े। आप पहले से ही अगर अपनी प्रकृति को पहचान कर उस हिसाब से अपना खान पान ध्यान रखते हैं तो शायद हमारा जीवन अच्छा चलेगा। तो मैम, जितना मैं समझ पाई, मेरे लिए तो ये बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। और मेरे बाकी पार्टिसिपेंट्स भी डेफिनेटली जो अभी तक टिके हुए हैं ना, ये 12 लोग हमने ज्यादा सीखा है। और जिन लोगों ने लेफ्ट कर दिया, वो अभी ये जो चीजें थी जो हमने, जो लास्ट में हम जो जिस्ट बताते हैं उसका, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका अगर कहीं से कुछ छूटा भी है ना, तो हम लास्ट में उसको कंक्लूड कर देते हैं। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। तो आयुर्वेद एक चलायमान प्रक्रिया है। आज कुछ और आप इसमें और भी इनोवेट कर सकते हैं और ढूंढ के चीजों को ला सकते हैं। तो ये स्थिर नहीं है, ऐसा मैडम ने बताया। और प्रकृति से ही आधार लेकर हम संस्कृति का भी निर्माण करते हैं। बाकी चीजें
मैंने जितना बता दिया, मैम को जो भी मैंने समराइज किया, मुझे लगता है वो सारी चीजें मेरे इस पॉइंट्स में आ चुकी हैं। तो प्रकृति, पुरुष और संस्कृति का अंतर संबंध, तो इसे हमें समझने की जरूरत है और अपने प्रकृति को समझकर उसके अनुरूप अपना खान पान नियोजित करें हम, तो हम आयुर्वेदा को उसी हिसाब से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं मैम को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।